Good morning, students. So, बच्चे we were doing basic concepts of chemistry and उसदे विच आपां ने mole concept कर लिया सी, ठीक है? And in the last lecture we did some basic terms related to chemistry, ठीक है ना? आज आपां ने एक important and easy topic cover करना है बच्चे, ठीक है? So important as well as easy, and the topic is called empirical formula. And the topic is called empirical formula. Fine. So पहला बच्चे अपन कुछ definitions करते हैं कि what is molecular formula and empirical formula. ठीक है? So देखो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होंगे, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच गिव्स अस द कि अपने पास एक मॉलिक्यूल दे विच एक कंपाउंड दे विच किने-किने एलिमेंट्स है और एक मॉलिक्यूल दे विच उन्हां एलिमेंट्स दे किने-किने एटम्स है. सो द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच गिव्स अस द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड types of atoms present in a molecule and the exact number of the atoms of a particular element in a molecule. कि एक molecule दे विच किहड़ियां एलिमेंट्स दे एटम्स है और उन्हां एटम्स दा कितना नंबर है. लाइक फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट डेफिनेशंस तुसी नोट्स विचों पढ़ सकते हो, ठीक है? सो लाइक आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज दा फार्मूला इज C6H12O6. सो बच्चे ग्लूकोज का फॉर्मूला देख के मैंने क्लियरली पता लग रहा है कि इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. इट हैज द एटम्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड उन्हां एलिमेंट्स दे या एटम्स दे किन्ने उन्हां एलिमेंट्स दे किन्ने एटम्स है एक मॉलिक्यूल दे विच. कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6. फाइन, डन. नाउ सेकंड डेफिनेशन इज empirical formula. हुन मुझे empirical formula की हुंदा है, it will not tell us about the exact number of atoms. It will give us the simplest ratio of the atoms of different elements in a molecule. एक molecule दे विच जेड़े अलग-अलग elements दे atoms है उन्हां दी simple whole number ratio आपां नूं देगा. For example, so glucose the empirical formula will be CH2O. Fine. अगर मैं इसके atoms ਨੂੰ 6 ਨਾਲ divide करना तो carbon will remain 1, hydrogen will remain 2 and oxygen will become 6. So this is the empirical formula of glucose. यानी कि मैंने पता चल गया कि glucose ਦਾ empirical formula is CH2O. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ carbon, hydrogen and oxygen ਦੇ atoms हैं they are in the ratio 1, ratio 2, ratio 1. Clear? So it gives you the simple ratio of different types of atoms in a molecule. This is the difference between empirical and the molecular formula. बच्चे हुन देखो how to calculate the molecular formula from empirical formula. So देखो for example अपन यही क्वेश्चन हुन उल्टा आ रहा है. मैं molecular formula erase करता. Done? हुन देखो नाउ वी कैन नॉट मेक आउट. हुन आप नहीं दस सकते कि ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला की है, ठीक है, अनटिल अनलेस अपन कुछ क्लूज दिते जान, ठीक है? सो देखो बच्चे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज if its empirical formula is CH2O and the molar mass is 180 grams. Fine बच्चे. So अपन ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास मेंशन करता एंड अपन इंपीरिकल फॉर्मूला देता ते अपन मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा गया. हुन इस दे लई बच्चे अपन की करना पड़ेगा, ठीक है? मैं जस्ट तुम्हें इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आप क्वेश्चंस तो हले करने हैं.
मैं जस्ट उन्होंने रिलेशन करा रहे हैं बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। सो देखो बच्चे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ EFM stands for empirical formula mass। हाँ जी बच्चे कितना आएगा, कार्बन is 12 plus 2 14, 14 plus 6 13। So empirical formula mass becomes 30। Fine, then we'll calculate the value of X। X ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, molecular mass upon empirical formula mass। So 180 by 30 is equal to 6। So max की value find out कर ली, clear? Now next step is to calculate the molecular formula। So molecular formula की होता है बच्चे, empirical formula into X। So empirical formula is CH2O into 6। So ਤੁਸੀਂ CH2O ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ you will get C6H12O6। So बच्चे मैं molecular formula of glucose find out कर लिया। You getting a point? So this is how we calculate molecular formula from empirical formula। Clear? ਆਪਾਂ ਨੂੰ empirical formula ਪਤਾ ਹੈ, molecular mass अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ given है ਤਾਂ ਆਪਾਂ molecular formula calculate कर सकते हैं। जो मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ C6H12O6 बच्चे डन। हाँ, अगर मैंने मोलर मास नहीं गिवन फिर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तो देखो अगर अपन मोलर मास नहीं गिवन बच्चे है ना, फिर अपन इंपेरिकल फॉर्मूला तो मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग इंपेरिकल फॉर्मूलाज ऑफ 2 or more compounds can be same। सो दो या दो तो ज्यादा कंपाउंड्स ਲਈ इंपेरिकल फॉर्मूलाज बच्चे सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड एसिटिलीन। बेंजीन का फॉर्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C6H6, एसिटिलीन इज C2H2। तो बच्चे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होया CH 6 ਨਾਲ डिवाइड करके, इसका भी कितना होया CH 2 ਨਾਲ डिवाइड करके। So this is the molecular formula for both and this is the empirical formula for both। So दोनों का empirical formula is same बच्चे CH and CH। Clear? So अगर तुसी इस empirical formula तो इत्थे तक पहुंचना है तो सानू बेंजीन का मोलर मास यानी कि 78 गिवन होएगा। अगर एच तक पहुंचना है तो एसिटिलीन का मोलर मास यानी कि 26 गिवन होएगा। ठीक है ना? सो अगर अपन मोलर मास नहीं गिवन तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सो इन सम केसेस the empirical formula also acts as molecular formula। So कुछ केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ empirical formula ਹੀ molecular formula ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल simplest example is CO2। सो बच्चे इसको आप फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। वाटर एंड अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेनी है C12H22O11 सुक्रोज, इसका बच्चे कोई कॉमन फैक्टर ही है नहीं। सो यही इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा बिकॉज आप किसी भी कॉमन टर्म नाल तिन्हां नूं डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? सो इन दीज केसेस जेड़ा इंपेरिकल फॉर्मूला है वही अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचे।
आई होप दिस इज डन। ठीक है, नाउ सो हुण आपां कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करांगे रिलेटेड टू एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूलाज। ठीक है, ते उन्हां क्वेश्चंस तो आपां नूं पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा बच्चे कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूलाज एंड अगेन एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला। फाइन, सो मैं फर्स्ट इक्वेशन डेडली सॉल्व करने जा रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज, सो मैं बिल्कुल सिंपल तो स्टार्ट करांगे बच्चे। द क्वेश्चन इज a compound contains, so the question is, write down the question, सारे क्वेश्चन लिख लो नाल नाल। ठीक है, a compound contains (93.71% carbon and 6.29% and 6.29% hydrogen. Full stop. Calculate the molecular formula. Calculate its molecular formula if the molar mass is 128 grams. सो अपन मुझे कार्बन की परसेंटेज देती है, ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज देती है एंड अपन इसको मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्लियर, पहला मैं सुनू एक थ्योरेटिकल मेथड दसांगा जो लेंथी मेथड है एंड देन वी डू अ शॉर्ट ट्रिक कि आप किद्दां डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं एक ईजी वे दे नाल। ठीक है, पहला आप लेंथी फॉर्मूला करांगे कि आप थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन नू किवें सॉल्व करते हैं बच्चे। सो बच्चे ऐदां दे क्वेश्चन नू सॉल्व करने लई वी नीड अ कंप्लीट चार्ट। ठीक है, पहला आप एक चार्ट फॉर्मुलेट करांगे। सो देखो, चार्ट द फर्स्ट कॉलम इज एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स अपने को देते हैं एक कार्बन एंड एक हाइड्रोजन। ठीक है, देन वी राइट डाउन इट्स atomic mass. Carbon atomic mass is 12, hydrogen atomic mass is 1. Clear? Then we write down percentage in the compound. Carbon is 93.71% and hydrogen is 6.29%. Clear? Done? Now, next, we'll calculate number of moles. So बच्चे moles की होंगे, देखो moles are given mass upon molar mass. So देखो number of moles अपन moles कर चुके ना, given mass upon molar mass. So अगर मैं total compound में assume करना कि total compound is 100 grams, तो of course carbon कितना हो गया 93.71 grams, hydrogen कितनी होगी 6.29 grams. So basically I have to divide the percentage by atomic mass. Clear? So what I get is 12 sevens are 84, fine, 9 7, ठीक है, 12 8s are 96. Clear? So 78 I get. Fine. Now, then dividing 6.29 by 1, I'll get 6.29 here, which is fine. Here it will be 7.8. Clear? Done now. Fine, which is, so we have got the number of moles. ठीक है? Then we'll calculate the simple ratio of atoms. So, simple ratio.
सो बच्चे हम सिंपल रेशियो किवें कैलकुलेट करनी है, अपने को जिन्ने भी एटम्स दे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इन्हां विचों सब तो छोटी वैल्यू नाल सब नु डिवाइड कर दो। इत्थे तां अपने को दो ही है, तो सब तो छोटी वैल्यू किहड़ी है 6.29, सो सब नु 6.29 डिवाइड कर दो। सो 6.29 डिवाइड बाय 6.29 इज 1। देखो सिंपल रेशियो का मतलब यही होता है ना कि अपन सिंपलेस्ट रेशियो पे पहुंचना है, सो 1। Now 7.8 divided by 6.29, this will come out to be 1.25। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਲਿਖਦੇ C ਹਾਫ ਹੈ ਜਾਂ C 1.25 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ होल नंबर रेशो। हाँ जी, हुण जिहड़ी भी रेशो पॉइंट्स दे विच है, अगर इत्थे 1.5 हुंदा आपां इस नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे सिंपल रेशो नूं होल नंबर बनाउण च। हुण 0.25 नूं अगर मैं होल नंबर बनाना है तो मैनूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा 4 नाल। सो मल्टीप्लाई 1.25 ते 1/4। सो 1.25 into 4 is 5 and 1 into 4। so बच्चे अगर इसको 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, and this will also be 4। so हुण इस पूरे प्रोसेस दे नाल मैं की बना लिया बच्चे, so इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे को कितना आ गया बच्चे, कार्बन दे 5 एटम्स है, हाइड्रोजन दे 4। so इंपीरिकल फॉर्मूला is C5H4। So my empirical formula comes out to be C5H4। So बच्चे again, once again I repeat कि पहला अपन given percentage जिहड़ी elements दी है उसको atomic mass नाल divide करते हैं। आप देखो जितना भी नंबर आ गया, आप और एग्जांपल्स भी करांगे, होल क्लियर हो जाएगा। जितना भी नंबर आ गया उस दे विचों सब तो छोटे नंबर नाल सब नूं डिवाइड कर देंगे हैं, तो नेचुरल है जिहड़ा खुद नंबर होएगा वो तो 1 ही हो जाएगा। अगर तो ये सारे होल नंबर आ जाते तो इंपीरिकल फॉर्मूला रेडीमेड आ गया सी। अगर कोई पॉइंट्स जा रहे हैं तो उसको होल नंबर दे विच कन्वर्ट कर लो। देखो किवें, अगर ये हुंदा 0.5 पिछे 0.5 फिर आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर दे। अगर 0.75 हुंदा तो 4 नाल मल्टीप्लाई कर दे। अगर 0.3 हुंदा तो आप 3 नाल मल्टीप्लाई कर दे। तो हुण 0.25 है, इसको 4 नाल मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट होल नंबर बनता है। सो अपने को 5 आ गया, आप इसको भी 4 नाल मल्टीप्लाई करता 4 आ गया। सो दिस इज योर इंपीरिकल फॉर्मूला। कार्बन दे 5 एटम्स है, हाइड्रोजन दे 4। क्लियर, डन। नाउ सो नाउ योर empirical formula mass। so C5 बचे 5 12s are 60 plus 4 hydrogens, so 64 grams। clear। now I calculate X, molecular mass divided by empirical formula mass। so 128 upon 64 is equal to 2। so our molecular mass अपन को given सीखा। क्लियर, ठीक है। सो इक्वल 2 आ गया। नाउ डन। नेक्स्ट स्टेप की सी अपना, फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एक्स। सो C5H4 इनटू 2। सो मेरे पास बचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बन गया C10H8 and this is your answer। clear। so this is your answer बच्चे, final। ठीक है। so we have calculated the molecular formula by using this data। ठीक है। सो पहले इस डाटा दे नाल अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दी हेल्प नाल मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। हुण इसी क्वेश्चन नूं करन दा वील डू अ शॉर्ट ट्रिक। आपां डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे। देखो कितना। सो बट बच्चे आप +1 थ्योरी एग्जाम दे विच शॉर्ट ट्रिक दे नाल सॉल्व नहीं करना। ठीक है, उथे मार्क्स नहीं मिलणगे।
क्योंकि इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला का क्वेश्चन विल कम इन अ बेयर मिनिमम ऑफ 3 मार्क्स ਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ short trick. Fine. So, number of atoms of an element is equal to उसकी percentage by 100 into molar mass of compound upon atomic mass of element. So this is the direct formula to calculate the number of atoms of an element in the molecule. So देखो बच्चे, उन पहला मैं कार्बन का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? So number of atoms of carbon. So carbon the percentage 93.71 upon 100 into बच्चे मोलर मास कितना देता है 128 अपॉन कार्बन दा एटॉमिक मास इज 12 क्लियर ठीक है इस सारे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ you will get 10 approximately 10 ठीक है ना हो गया कि नहीं ठीक है and similarly number of atoms of hydrogen so the percentage 6.29 by 100 into molecular mass of the compound बच्चे कितना है 128 upon atomic mass of hydrogen is 1 ठीक है इसको जो सॉल्व करोगे you will get approximately 8 so डायरेक्ट आ गया अपने को कार्बन कितना आ गया 10 हाइड्रोजन कितना आ गया 8 सो आप लिखेंगे सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C10H8 अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा है तो आपने कैलकुलेट कर लिया अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है तो इसको 2 ਨਾਲ डिवाइड करके C5H8 because they have only one common factor that is 2 आप 2 ਨਾਲ डिवाइड करके एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया so this is your direct method to calculate the molecular formula बच्चे ठीक है ना इसके बाद अपन पहला की फाइंड आउट करते हैं number of atoms of an element in a molecule in the molecule clear बच्चे ठीक है so this is your direct method done now I shall solve another question for you ठीक है by both the methods जिस दिन अपन को क्वेश्चन और ज्यादा प्रोसेस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा so बच्चे our next question is a compound has percentage of carbon is given, hydrogen is given, and oxygen. Fine. We have to calculate its molecular formula. अगर उसकी vapor density is 83. मैं vapor density क्यों mention की थी बच्चे? क्योंकि the relation between molecular mass and vapor density की होता है molar mass is twice of vapor density. किसी भी compound, किसी भी element का जो मोलर मास ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ वेपर डेंसिटी ਦਾ ट्वाइस ਹੁੰਦਾ ਹੈ मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी तो कैलकुलेट हो जाएगा 166 चलो अब अपने क्वेश्चन पे आने हैं सो देखो बच्चे नाउ अ कंपाउंड हैज 3 एलिमेंट्स सो पहले मैं एलिमेंट्स मेंशन कर रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देन इट्स परसेंटेज बच्चे कार्बन की परसेंटेज इज 57.8 हाइड्रोजन इज 3.6 एंड देन ऑक्सीजन बचे कितना कैलकुलेट होएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन को ऐड करके 100 चो माइनस कर दो टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमेशा 100% ना तो व्हाट वी विल डू इज 100 57.8 प्लस 3.6 कितना होगा सो दिस इज 60.8 61.4 So 61.4 हो गया उसको 100 से माइनस कर दो सो यू विल गेट
38.6. सो अपने ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया बच्चे. क्लियर. नाउ एटॉमिक मासेस. So तीनों elements का atomic mass, carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen is 16. Then number of moles. Given mass upon molar mass. So 57.8 upon 12, 4. Then 9 and 8, 8. 4.8. 3.6 by 1 is 3.6. हाँ जी, 16 twos are 32. 32. So 6 and 6. So 16 fours are 64. So 2.4. Clear? So we have three values. इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू के लिए है 2.4. So सब लोग 2.4 में डिवाइड कर दो. So now simple ratio. 4.8 divided by 2.4 is 2. 2.4 divided by 2.4 is 1. 3.6 divided by 2.4 is 1.5. Clear? So again, I have one value in fractions, so I'll convert it into whole number. So simple whole number ratio. हाँ जी बच्चे. So मैं इसको कितना मल्टीप्लाई करा by 2. So multiply by 2, this becomes 3. Multiply by 2, this becomes 4. Multiply by 2, this becomes 2. Clear? So मेरे पास empirical formula calculate हो गया. So empirical formula is C4H3O2. Fine? Clear? उसी में कैलकुलेट कर लूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. कार्बन 12 fours are 48, hydrogen 3, oxygen 16 twos are 32. So this becomes 83 in all. Done? हाँ जी बच्चे. So now I'll calculate X molar mass upon empirical formula mass. So बच्चे molar mass, vapor density given है, मैं ऐसे कैलकुलेट कर लिया. Molar mass is equal to 2 into vapor density, यानी कि 2 into 83, 166 grams. Done. Fine. So similarly here. So 166 upon 83 is equal to 2. X की वैल्यू आ गई. So molecular formula is equal to empirical formula C4H3O2 into X. So answer is C8H6O4 and done with it. Clear? So we have calculated the molecular formula of the compound. Fine. From the given percentages and molecular mass कह लो या vapor density कह लो. Now I shall move on to the direct method. So अपन direct method कितना यूज कराएंगे बच्चे? So we shall move on to the direct method now. So firstly I will calculate number of atoms of carbon. So the percentage by 100 into molar mass is 166 upon carbon atomic mass 12. So इस सारे को सॉल्व करके I'll get approximately 8. Fine. बच्चे देखो इसके विच एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी. जितना आंसर आ गया 7.9, 8.1 तो 8 ही बनने जाएगा. ठीक है ना. Number of atoms of hydrogen. So percentage is 3.6 by 100 into 166 upon 1. So this will be approximately 6. Percentage of oxygen, number of atoms of oxygen. Percentage will see 38.6
by 100 into 166 upon atomic mass is 16. This will be approximately 4. Clear? So मेरे पास molecular formula calculate हो गया. So अपन लिखेंगे, so molecular formula is equal to C8H6O4. Fine. अगर मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछा गया है तो इसको 2 ना डिवाइड कर दो, C4H3O2 3 आ गए. क्लियर? सो दिस वाज द शॉर्ट ट्रिक बच्चे. ठीक है, डन. आई होप दिस इज क्लियर. फाइन. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला. ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਆਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਥੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰਵਾ. ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਜੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ 4.28 mg ਲੈਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਨ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8.45 mg of CO2 ਬਣੀ, 3.46 mg of water ਬਣਿਆ. कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है. डन. ठीक है, हुन पहला मैं की करूंगा, पहला आई हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मोलर मास. यू गेटिंग अ पॉइंट? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ. मैं उसको बर्न किया. Of course, burning occurs in the presence of oxygen. I get CO2 and water. So data is कि this compound is 4.28 milligrams. CO2 बन गई मेरे पास बच्चे 8.45 milligrams. And water is 3.46 milligrams. Fine बच्चे. So this is the data. But natural है. देखो बच्चे, हम ध्यान नाल की इस क्वेश्चन ट्रिक की है. हम ध्यान नाल देखो कि जिन्ना भी कार्बन है that has been converted into CO2. जिन्नी भी कंपाउंड हाइड्रोजन है that has been converted into water. But ऑक्सीजन बारे आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन ईस्ट चली गई, कुछ ईस्ट चली गई, एंड टोटल भी नहीं गई क्योंकि सम ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर. ठीक है ना? सो ऑक्सीजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करांगे, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट करांगे कि कार्बन ਤੇ हाइड्रोजन ਦੀ परसेंटेज फाइंड आउट कर लांगे, दोनों ਨੂੰ ऐड करके 100 ਚੋਂ माइनस कर लांगे, विल गेट ऑक्सीजन. ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ गारंटी है ना कि कार्बन सारी ਦੀ सारी चली गई CO2 ਚ, हाइड्रोजन सारी की सारी चली गई वाटर. सो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ फाइंड आउट करते हैं? देखो बच्चे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अपने को फॉर्मूला की होता है मास ऑफ कार्बन इन CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2. सो बच्चे देखो ध्यान नाल ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ परसेंटेज फाइंड आउट करांगे कि कार्बन क्या है CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ CO2 ਚ कार्बन ਦਾ मास कितना है? सो कितना ਹੈਗਾ 12 ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 44. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18 ਐਦਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ, ਸੋ इनटू mass of CO2 formed upon mass of compound.
सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 8.45 और ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 4.28 क्लियर बच्चे into 100 done. So this is the percentage इथों अपने को इस फॉर्मूले नाल percentage of carbon आ जाएगी. So यानी कि ਜਿਹੜਾ कंपाउंड कार्बन तो बन रहा है उसके विच कार्बन का मास कितना है, उस कंपाउंड का मोलर मास कितना है, कितना वो कंपाउंड बन रहा है, कितना अपने टोटल कंपाउंड स्टार्टिंग लेता सी into 100. So देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहे हैं. CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन का मास is 12. So बच्चे in CO2 the mass of carbon is 12. Clear? Now upon CO2 the molar mass is 44 into mass of CO2 formed. So बच्चे CO2 8.45 upon mass of the compound is 4.28 into 100. Clear? ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਸ ਚ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਚ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਘਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ. ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ग्राम्स से कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 सो कट जाएगा. ठीक है. सो इस सारे ਨੂੰ सॉल्व करके अपने को कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी बच्चे 54.35%. क्लियर? सो कार्बन मेरे को आ गया, सो मैं इतने मार्क कर लेना है, कार्बन मेरे को आ गया 54.35%. Clear? Done, I hope. ठीक है. So with this, I'll calculate the percentage of carbon. Now we'll move on to the calculation of percentage of hydrogen. So देखो मैं इसमें change करता चला. So अगर मैं hydrogen की percentage calculate करनी है, the mass of hydrogen in water upon molar mass of water, mass of water formed, mass of the compound into 100. ठीक है. So now I'll put the values. So अब values put कर रहे हैं बच्चे. So mass of hydrogen in water is 2 grams upon 18 into mass of water formed is 3.46 upon 4.28 into 100. Fine. So अपने को सॉल्व करके बच्चे ये आ जाएगा 9.06%. 9.06%. Clear? So hydrogen की percentage भी आपने कैलकुलेट कर ली. So this is 9.06%. Clear? So when hydrogen की percentage, कार्बन एंड हाइड्रोजन आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चे. ऑक्सीजन हम मैं कैलकुलेट कर सकता है कितना, दोनों को ऐड करके 100 चो माइनस कर देंगे. ठीक है. सिर्फ दोनों को ऐड कर देंगे और 100 चो माइनस कर देंगे एंड ऑक्सीजन मेरे को कितना आ जाएगा सॉल्व करके 36.59%. 36.59%. सो अपने इस सारा कैलकुलेट कर लिया. देखो क्लियर. हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया एंड हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया एंड ऑक्सीजन भी आ गया. सो आप एक बार रेफरेंस लिस्ट में लिख लेंगे हैं 54.35, 9.06 and 36.59. Clear? हुन बच्चे अपने को परसेंटेजेस आ गए हैं and now we shall start off with the calculation for empirical formula. ठीक है.
सो बिल्कुल सेम जिदा आपने पहला किया सी एलिमेंट्स आर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज कार्बन 54.35 हाइड्रोजन 9.06 ऑक्सीजन 36.59 ठीक है मोलर मास एटॉमिक मास 12 1 16 so number of moles हाँ जी बच्चे number of moles this divide by 12 this divide by 1 this divide by 16 एक आ गया 9.06 16 twos are 32 4 to 5 so 45 so this will be somewhere around 2.2 16 threes are 48 from that है ना so this will be 2.28 so this is 2.28 54.35 divided by 12 so this will come out to be 12 fours are 48.63 12 fives are 45 sorry 12 fives are 60 done so this is your number of moles and now you will calculate simple ratio so simple ratio आपने कितना कैलकुलेट की थी बच्चे इनमें विचों सब तो छोटी वैल्यू नाल सब नु डिवाइड कर दो ठीक है so divide every value by 2.28 so अपन 2.28 नाल डिवाइड करांगे तो this will come out to be 1 ठीक है this will come out to be approximately 2 and this will come out to be approximately 4 clear so तीनों अपने को होल नंबर्स चाहिए अपन होल नंबर्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है so our empirical formula becomes C2H4O fine now empirical formula mass 12 twos are 24 plus 4 plus 16 so 44 grams 44 grams clear done now X is equal to molecular mass upon empirical formula mass so 88 upon 44 is equal to 2 clear so अपने को दो आ गई बच्चे वैल्यू x दी ठीक है नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O into x यानी कि into 2 so मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन गया C4H8O2 done so इतना सॉल्व करना है बच्चे दिस इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन दैट कैन come in case of empirical and molecular formulas ठीक है and with this we have completed yet another very important topic from the chapter ठीक है empirical and molecular formulas ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ टॉपिक्स ਹੋਰ बचे हैं बच्चे इस चैप्टर ਦੇ एक ਤਾਂ stoichiometry and second is reactions in solutions stoichiometry again it will take one day but reactions in solutions उसपे अपन हो सकता है कि 3-4 लेक्चर्स लग जाए and with that the chapter will be done ठीक है so आज ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ and in case you have any doubts you can always post in the group ठीक है बच्चे so keep studying and keep revising thanks a lot